Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome to online session of mathematics. And today, again, we will learn about the interleave chapter number two. And in the last lecture, I already started the chapter number three. So both day, one is continuing for the chapter number two, and second day we will continue for the chapter number three. So both lectures are using the different chapters. So you can also manage your fair book as well as or your rough book also, because whatever the exercise is given over here, that you have to understand properly. So today we will learn about the factors and multiples, that is from the chapter number 2. So you can also directly see these factors and multiple from that. This is the chapter 2 continue lecture from the last week, and already I started the another one chapter, that is from the unit number 1, chapter number 3 is there. So chapter number 3's lectures is going on to the next day. So today we will learn about the factors and multiple. So I hope that everyone has understood what I am telling. Now we are going for that. So let us start with factors and multiple first. So what do you understand about the factors first? Now we just going for the factors over here. That factors is considered that this is the definition over here. A number that divides another numbers completely without leaving a remainder is called a factor. फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर एक नंबर को दूसरे नंबर से कंप्लीटली हम डिवाइड कर सके, उस नंबर को हम उसके फैक्टर बोलेंगे। मतलब जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तब इसमें रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। यदि रिमाइंडर नहीं बचता है उसी को उस नंबर का फैक्टर बोलते हैं। सो ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर्स कंप्लीटली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर. So that is the definition of it. And second thing is that now we are going on to the another one portion. That portion is considered here for the next one. Definition is suggest here. That is what is a factor. Now what do you understand about the factor? तो हमने अभी डेफिनेशन उसकी देख ली, पूरी ब्लू लाइंस में आपको दिख रही है. दैट इज द कंसिडर ऑफ द फैक्टर्स. फैक्टर्स की डेफिनेशन यहाँ है कि किसी भी नंबर्स को हम कंप्लीटली डिवाइड कर सके उसको हम इसका फैक्टर बोलते हैं. समझ लो कि 12 कैन बी डिवाइड इन डिफरेंट वेज. व्हेन 12 इज डिवाइडेड बाय 5, so obviously 12 is divided 5, not completely divides with 12. So 1 is 12 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 6 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है, बट इट नेवर डिवाइड्स विथ 5. तो आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4 आर कंप्लीटली डिवाइड्स द 12. आप देख सकते हो कि यदि मैंने कंसिडर किया तो 12 को हम 6 से डिवाइड किए तो ऑब्वियसली 6 2s आर, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया. तो 6 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 12. सिमिलर वे 2 इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, 3 इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, 4 इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर को कोई दो नंबर हो, सपोज 12 है तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे 12 है, 12 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी एंड 6 से भी, और इटसेल्फ 12 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं. 5 ही ऐसा नंबर है जो हम 12 को 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट रिमेन्स द रिमाइंडर. तो ये चीज हुई. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टर? नाउ वी आर गोइंग फॉर द how do we find the factors of a number. Step number 1 is considered that start counting from 1, find the numbers that can divide the main numbers without a remainder. पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फैक्टर ऑफ 18, 18 के फैक्टर क्या है. तो हम स्टार्ट करेंगे कोई भी नंबर्स का, यदि हमें फैक्टर निकालना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे. तो 18 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, यस. फिर 18 को 2 से डिवाइड किया तो वो भी हो सकता है, यस. 9 मतलब 18 को 2 से डिवाइड किया
that will consider as a 18. Similar way 18 को 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है, that is also be yes. 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता और 5 से भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको 1, 2 और 3 से डिवाइड किया जा सकता है. तो दैट्स वाई वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स पेयर्स ओवर हियर. हम उसकी फैक्टर पेयर्स कैसे लिखेंगे? सो दैट वी हैव टू कंसिडर हियर 1 and 18, यानी आपका 1 और 18 ये उसके फैक्टर है, 1 और 18, 2 और 19 और 3 और 6, यानी आपको फैक्टर्स पेयर मिलती है फैक्टर्स ऑफ 18 की 1 और 18, 2 और 9 और 3 और 6, दैट इज कंसिडर द फैक्टर ऑफ 18. तो ये हुआ जो नंबर 18 को completely डिवाइड कर सकता है without leaving a remainder, that all are its factor. The second step is covered. Now third step is that follow this step till the factor starts to repeat. आपको ये प्रोसीजर कब तक करनी है? जब तक आपके फैक्टर्स रिपीट होने लगे, मतलब 1, 2, 3 हुआ, 4 नो हुआ, 5 नो हुआ, फिर 6 जैसे ही आपने कंसिडर किया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रिपीट हुआ. 18 को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 6 3s are 18 होता है. सो 6 and 3 यहाँ पे रिपीट हुई, आप देख सकते हो फैक्टर्स आर रिपीटिंग 6 and 3, क्योंकि ऊपर भी 3 and 6 था, तो 3 and 6 की फिर से रिपीट हुई. तब तक हमें इसके फैक्टर निकालने चाहिए. ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स को कैसे हम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, बाद में उसकी पेयर बनाते रहेंगे, और फैक्टर कब तक हमें निकालना है. तो जब तक फैक्टर्स रिपीटिंग होते हैं तब तक हम उसको रिपीट करते रहेंगे. तो दैट इज द मेंशन ऑफ फॉलो दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ 18. नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिडर दैट फैक्टर्स के बाद आता है दूसरा कंसेप्ट, व्हाट इज अ मल्टीपल. नाउ नंबर्स दैट कम्स इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल, जो नंबर मल्टीप्लिकेशन टेबल से आता है, मतलब टेबल में आता है, वो सभी नंबर्स को हम उसके मल्टीपल बोलेंगे. So numbers that comes in the multiplication table of a number that are called its multiple. We can say that 6 into 1 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24. ये 6, 12, 18 और 24 all are the multiples. Like that we are going for the multiples of the number. फर्स्ट स्टेप इज दैट राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द नंबर. अभी हमें 12 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे इंडिकेट्स किया. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48. ऐसे ही हम 12 8s are 96 होता है. तो दिस ऑल आर द मल्टीपल्स. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 all are the multiples of the 12. Next one is consider properties of the factor. अब प्रॉपर्टीज में हम देखें तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चीज आपको मेंशन कर लेनी है अपनी बुक्स में. पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन, फिर मल्टीपल की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, फिर आपको कंसिडर करना है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, उसमें प्रॉपर्टी एग्जांपल्स. ये जो प्रॉपर्टीज है 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर, and all these properties with the examples you can write in your fair book and send it as a 2 days homework. So properties, first property is that किसी भी फैक्टर्स का, मतलब 1 is a factor of all number, सभी नंबर का 1 फैक्टर होता ही है. 1 is a factor of all number. आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बताया कि फैक्टर ऑफ 3, तो उसमें 1 तो होगा ही और 3 भी होगा. 1 and 3. फैक्टर्स ऑफ 18 में आप देखो तो 1 2 3 6 9 and 18. आपको पता है, हमने सीख लिया कि फैक्टर्स किसको बोलते हैं. 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके ऐसे सभी नंबर को उस 18 के फैक्टर्स बोलते हैं. तो 1 2 3 6 9 and 18 हुआ, तो आप देख सकते हो दोनों में 1 है, वो फैक्टर होगा ही. तो एक बात याद रख लेना है कि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है. सो दैट इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी. सेकंड वन प्रॉपर्टी सजेस्टिंग अस दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. किसी भी नंबर का
फैक्टर है वो खुद वो नंबर ही होगा, मतलब 3 का फैक्टर 3 होगा ही, और 18 का फैक्टर 18 होगा, मतलब 3 और 18 बोथ आर द फैक्टर्स इटसेल्फ। तो एक नंबर 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होगा, और इटसेल्फ जो नंबर है वो भी सभी का एक फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 3 एंड फैक्टर ऑफ 18 में 1 एंड इटसेल्फ नंबर यानी 3 एंड 18 वो भी फैक्टर ही है, यानी दो प्रॉपर्टी आपको याद रह गई। थर्ड वन प्रॉपर्टीज है आपकी, फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। फैक्टर जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है किसी भी नंबर का। आप देख सकते हो कि 6 को 6 से डिवाइड करें, मतलब 6 1s are 6, मतलब वी हैव टू एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, यानी रिमाइंडर 0 बचती है। 6 3 2 एंड 1, आप देख सकते हो 6 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है एंड 6 से डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज द परफेक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो इससे आपका आंसर क्या मिलता है? 0। अब 6 को 1 से डिवाइड करो तो भी 0 आता है, 2 से डिवाइड करो तो भी 0 आता है, 3 से डिवाइड करो और 6 इटसेल्फ से करो तो फैक्टर्स ऑफ 6 दैट इज 1 2 3 एंड 6 आर देयर। ओके, so this is the property number 3. Now the property number 4 is suggest us that all factors of a number are less than or equal to the number. So factors of 18, that is 1 2 3 6 9 and 18, that is the factors of 18. So all factors of numbers are less than or equal to the number. जो भी नंबर है उससे लेस ही होंगे। आप देख सकते हो कि 18 का फैक्टर हमें निकालना है तो 18 से कम नंबर ही हमें उसके फैक्टर मिलेंगे, यानी 1 2 3 6 9 एंड 8 लेस देन और इक्वल टू, मतलब 18 जितना और 18 से कम वाले नंबर ही उसके फैक्टर्स कहेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 18 इज लाइक दैट, एंड फैक्टर्स ऑफ 14 1 2 3 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो आप देख सकते हो कि 14 से लेस देन और इक्वल ही हमें वो नंबर मिलेंगे। तो 14 का निकालते हैं तो 14 और 14 से कम मिलेंगे, 18 का निकालते हैं तो 18 और 18 से कम नंबर ही हमें मिलेंगे उसके फैक्टर। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, चारों 4 प्रॉपर्टी उसके एग्जाम्पल से आपको याद रखनी है। हर एक प्रॉपर्टी के सामने उसका एग्जाम्पल दिया गया है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर फेयरबुक एंड सेंड इट एज टूडेज होमवर्क। ये सब चीज़ है, फैक्टर्स की डेफिनेशन लिख ली, मल्टीपल की डेफिनेशन लिख ली, बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स लिखा, इसमें 4 प्रॉपर्टी लिखी और 4 एग्जांपल्स अपने सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो लिखा, और बाद में यू कैन सेंड इट। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिडर फॉर द मल्टीपल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीपल। अब फैक्टर्स की हमने 4 प्रॉपर्टी देखी और मल्टीपल की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 2 प्रॉपर्टीज। तो दोनों प्रॉपर्टीज कैसी है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब फैक्टर में ऐसा था कि जो भी नंबर का फैक्टर निकालते हो वो फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू हुआ करता था। मतलब 18 का निकाला तो 18 से कम वाले ही सब नंबर मिलेंगे, और मल्टीपल में ऐसा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 6 का मल्टीपल निकालना है तो 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 सो ऑन, मतलब हम राइट साइड की ओर जाएंगे, फैक्टर में हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। एंड सेकंड वन, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। मतलब मल्टीपल जो भी मिलेगा वो इनफाइनाइट होगा, फैक्टर्स इनफाइनाइट नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल के साथ आप अपनी फेयर बुक में मेंशन कीजिए, और वही चीज़ की ज़्यादा आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए, और बाद में वही चीज़ का फोटोग्राफ्स आप आज होमवर्क में सेंड कीजिए। So that is the properties of multiple. Now next one is considered for the next one point. Just we have to take it. Now after taking the factors and multiple, we will move on to the even, odd, prime and composite numbers. Again I repeat that even, odd, prime and composite numbers. So what do you understand about even, odd, prime and composite numbers? So let us start with taking some knowledge regarding even, odd, prime and composite numbers. So let us move on it.
फर्स्ट वन इज दैट इवन एंड ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं. ऑब्जर्व द पैटर्न इन द नंबर्स गिवन बिलो. आप देख सकते हो कि 12 को 2 से डिवाइड किया, तो 12 को 2 से डिवाइड किया मतलब हमें मिलता है 6. सो रिमाइंडर यहाँ पे कितनी बचती है, 0. आप देख सकते हो कि 12 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, so we got here the 0. So 0 is the remainder, so remainder is the 0 and we got these things. आप देख सकते हो कि कितने zeros आपको मिलते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 zeros are there. सिमिलर वे 8 को 2 से डिवाइड किया तो 9 रिमाइंडर्स, मतलब हमें 9 हमें मिलता है. रिमाइंडर कितनी बार मिलती है, 0. तो 9 हमें उसका डिवाइजर यानी क्वेश्चन मिलता है 9, क्योंकि 18 को 2 से डिवाइड करो तो कितना मिलता है, 9. 9 2s are 18, सो वी पैटर्न इट इनटू द 9. वैसे ही 14 को 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलता है 7 और रिमाइंडर मस्ट बी 0. तो इसी तरह से हम पैटर्न्स को फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि पहले पैटर्न में आपको 6, फिर बाद में 9, फिर 7 ऐसा आपको मिलता है. So observe these patterns and then you can say that all the numbers can be divided by 2 without leaving a remainder. Such numbers are called the even number. जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आपकी 0 बचती है, वो सभी नंबर्स को हम इवन नंबर बोलेंगे. Okay, can be divided by 2 without leaving a remainder. Such numbers are called the even numbers. उस नंबर को हम क्या कहेंगे, even. आप देख सकते हैं 12 को 2 से किया, 18 को 2 से किया और 14 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचती है वो 0 है. तो ये सभी नंबर्स को 12, 18, 14 ऑल आर द नंबर्स आर इवन नंबर. मतलब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है और यदि डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर हमारी 0 बचती है, उस नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर. तो ये बड़ा इजी है. सेकंड थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑड नंबर. आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर्स आप ले सकते हैं. 15 को 2 से डिवाइड किया, 11 को 2 से डिवाइड किया और 9 को 2 से डिवाइड किया. 15 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचती है 1. 11 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचती है 1 और 9 को 2 से डिवाइड किया तभी हमारे पास रिमाइंडर 1 बचती है. आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, रेड जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो रेड पोर्शन का मतलब होता है वी हैव टू यूजिंग हियर एज ए रेड डॉट. सो दिस रेड डॉट आर कंसिडर्ड एज अ वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ इवन ऑड नंबर्स, क्योंकि वहाँ पे सभी जगह पे रिमाइंडर बचती है. तो जो नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद यदि आपके पास रिमाइंडर बचती है वो सभी नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर्स. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इट. All the numbers cannot be divided by 2. They leave a remainder when divides by 2. जब हम सभी नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते और हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचती है, दैट ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स. तो 15, 11 एंड 9 ऑल आर द ऑड नंबर्स. तो दो चीज़ क्लियर हो गई इवन एंड ऑड में. जो जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचती है तब उसको बोलेंगे इवन नंबर, और किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर बचती है उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर. इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉर द इवन एंड ऑड नंबर्स. वी कैन से दैट हियर इवन नंबर्स मतलब ऑल इवन नंबर्स हैव 0, 2, 4, 6 और 8 इन देयर वंस प्लेस. उसके वंस के प्लेस पे या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा. यानी आप देख सकते हो कि सभी के नंबर 24 पहला नंबर है तो 24 का यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे 4 है, 12 में 2 है, 68 में 8 है, 100 में 0 है, 246 में 6 है, 1000 में 0 है, 106 में 6 है. तो जिस नंबर के पीछे वाला लास्ट वन डिजिट यदि 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो सभी इवन नंबर होगा. और ऑड नंबर कौन होगा? जिसके पीछे लास्ट डिजिट या तो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो. आप देख सकते हो 15 की लास्ट डिजिट 5 है, 463 की
3 है, तो अब हम उसका यूज़ करेंगे। सो ऑटोमेटिकली 1 2 5 7 और 9 वंस प्लेस पे होगा, वो सभी नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलेंगे। तो ये हुआ आपका इवन एंड ऑड नंबर का एक्सप्लेनेशन। जस्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट वन थिंग, दैट इज प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर. So what do you understand about the prime and composite number? First one, prime numbers. What do you understand about the prime number? Numbers other than 1 whose only factors are 1. 1 के अलावा जो भी नंबर है उसका फैक्टर एक होगा, एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसका सिर्फ एक एंड नंबर इटसेल्फ दो ही फैक्टर होंगे, वो नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे. नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and number itself are called prime numbers. Example, the numbers 2 and 3 and 5. तो आप देख सकते हो कि 2 3 and 5 are prime numbers. They have only two factors, 1 and number itself. मतलब 1 and 2 होगा, 3 का 1 and 3 होगा, और 5 का 1 and 5 होगा. मतलब जो नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ नंबर हो, उसी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे. सो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ हियर, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर. नाउ वी आर गोइंग फॉर द कॉम्पोसाइट नंबर. कॉम्पोसाइट नंबर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोसाइट नंबर. जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, वो सभी नंबर को हम कॉम्पोसाइट नंबर बोलते हैं. एग्जाम्पल, द नंबर 4 6 8 9 एंड 10 आर द कॉम्पोसाइट नंबर्स बिकॉज दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स. आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 कितने होंगे, 1 2 एंड 4 होगा. फैक्टर्स ऑफ 66 क्या होगा, 1 2 3 एंड 6 होगा. एंड फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा, दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड हियर. So that all things are considered here, that factors of 8 is 1 2 4 and 8. तो आप देख सकते हो कि चारों में कॉम्पोसाइट नंबर का मतलब होता है जिस नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर हो, वो सभी नंबर्स को हम कॉम्पोसाइट बोलते हैं. और प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक एक हो और दूसरा इटसेल्फ नंबर हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे. So this is the definition of prime and composite numbers over here. Now let us move on that. We can find all the prime numbers from 1 to 100 without actually checking for factors through a method called sieve of Eratosthenes. This method was invented by a Greek mathematician Eratosthenes in the 3rd century BC. ये सब चीज़ किसने फाइंड की है, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए इरेस्टोथेनेस ने ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस, पर्टिकुलर टेक्निक यहाँ पे इंडिकेट्स की है. तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन. Okay, so this is for your understanding point of view. And the next one is considered that write all the prime numbers between 1 and 100. अब 1 और 100 के बीच में सभी प्राइम नंबर आपको लिखना है. So let us move that 2 3 5 7 all are the answers of it. 2 3 5 7 11 13 17 19 21 up to 97. ये सभी आप कैलकुलेट कीजिए. प्राइम नंबर्स 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, आपको पता है प्राइम नंबर किसको हमने कहा था. प्राइम नंबर इज दोज नंबर्स दैट हैविंग टू फैक्टर्स ओनली. वन इज 1 एंड सेकंड वन इज नंबर इटसेल्फ. तो दिस ऑल आर द नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स. सो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है. यहाँ पे 1 और 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स मौजूद है. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस थिंग्स whenever you required in your fair book. So up to the end of this session, first today all these things we learn about the factors, multiples, properties of the factors, properties of the multiples, then after even, odd, प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर्स. ये सभी के बारे में हमने जो सीखा
वो सब कुछ आपको आज के होमवर्क में सेंड करना है. मतलब you starts with beginning of this video to end of this video. Whatever I mentioned that you write down in your fair book and send it, that photographs to as today's homework. I hope that everyone understood properly what I am telling, and we will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.